Learners, continuing with the same chapter of economics, foreign trade, chapter number 9. And in this E-class, we will be studying about the concept of balance of payments. Now, introduction hai, meaning hai, dono hai. So, introductory part says that balance of payment is a systematic account. Systematic account means properly maintained, well maintained account of the value of transactions of a country with the rest of the world in goods and services, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड कैपिटल दैट इज एसेट्स. यस, यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं इन अ वेरी प्रॉपर मैनर किए जाते हैं और वो काय के होते हैं जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एक कंट्री के बाकी की कंट्रीज के साथ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज हो, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स हो एंड कैपिटल एसेट्स जो भी हो, इन सब से रिलेटेड इस टॉपिक में हम देखेंगे. And the meaning says that an accounting statement showing the values of imports and exports of tangible, you all know the meaning of tangible, that is visible, and intangible, that is invisible goods during a year. Yes, एक साल में जो भी हमने imports and exports किए हों, whether goods and services हों, जो भी हों, tangible और intangible goods during a particular year, yes, जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, दैट इज नोन एज यस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. नाउ tangible or visible goods over here means the goods which have physical existence. Now you all are commerce students, so आप लोगों को tangible goods की meaning and example you all know. Over here, yes, it should have a physical existence. जैसे टीवी है, फ्रिज है, वी कैन टच इट. इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स मीन्स सर्विसेज, या सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स. नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज अ क्रेडिट एंट्री एंड अ डेबिट एंट्री. यस, डेबिट एंड क्रेडिट दो एंट्रीज होती ही हैं. ऑल रिसिप्ट्स बाय द होम कंट्री from foreigners are recorded in the credit entry and all the payments by the home country to the foreigners are recorded in the debit entry. Yes, ये rules है हमारे accounts में, आप लोगों ने पढ़ा ही है, जिसमें आता है जो हमारे को पैसा मिलता है, रिसिप्ट्स जो होती हैं जो हम अर्न करते हैं दैट आर क्रेडिटेड एंड पेमेंट्स जो हम पे करते हैं दैट इज debited. Now let us move on to the types of balance of payments. Now balance of payments can be of two types. एक है balanced और दूसरा है unbalanced. सीधी सी बात है, balanced होगा या unbalanced होगा, नाम से भी मालूम चल जाता है कि ये क्या होता है. So balance of payment is said to be balanced when the value of entries on credit side equals that on the debit side. जब क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है. Balance of payments is unbalanced when the value of entries on the credit side is not equal to the entries of debit side. और जब दोनों सेम नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहे होते तो वो unbalanced होता है. ये तो सिंपल था, लॉजिकल था. Now if the payments are more than the receipts or the value of credit entries is lesser than the value of debit entries, there is deficit in the balance of payments. Now यहाँ पे अगर payments ज़्यादा है receipts से, यानी कि मैंने पे ज़्यादा किया है, कंट्री ने पे ज़्यादा किया है, receipts उसके पास कम है, उसका receipts जो है वो कम अगर है, then it is obviously the deficit. The other thing जो surplus है, the other thing is if the receipts are more than payments, obviously उसका उल्टा होगा. यहाँ पे receipts जो हैं वो payment से ज़्यादा है और the value of credit side entries is greater than the value of debit side entries. There is a surplus in the balance of payments. Now one important note over here which says that according to the double entry bookkeeping system, a balance of payments always balances. However, in reality, there can be deficit or surplus in the balance of payments. Now, normally जो हमारा double entry system है उसके हिसाब से वो हमेशा balance रहेगा, मगर
इन रियलिटी जो प्रैक्टिकली होता है वो या तो डेफिसिट होगा या तो वो सरप्लस जाता है। डबल एंट्री के हिसाब से यस इट विल बी ऑलवेज बैलेंस, जबकि रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वे में it will be either deficit or the surplus one. Now let us move on to the next one, which is accounts of balance of payments. Now balance of payments has got two different accounts, एक है current account और दूसरा है capital account. current account, capital account, yes दोनों जो है बहुत ही सिंपल इजी है, आपको नाम से ही इनके मीनिंग जो है माइंड में क्लिक हो जाने चाहिए। सो लेट अस मूव ऑन टू, पहले करंट अकाउंट देख लेते हैं कि करंट अकाउंट जो है वो क्या होता है। नाउ करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग में यस पहला वाला आया है, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज गुड्स, टेंजिबल गुड्स जो है उसकी ट्रेडिंग का डिटेल पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। नाउ रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री एंड पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंट्री। वेरी सिंपल एंड ईजी, अभी अभी हम लोगों ने यही चीज़ भी देखी थी। नाउ द सम टोटल, यानी कि इनको एड अप करके द सम टोटल ऑन दिस सेक्शन ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ द पेमेंट्स फॉर मर्चेंडाइज imports are greater than the receipts from merchandise exports, there is deficit in balance of trade. Same चीज़ देखो, अभी अभी हम लोगों ने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के टाइप्स में किया था दैट इज डेफिसिट एंड सरप्लस, वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोगों को बताया गया है कि अगर यहाँ पे जो पेमेंट साइड है वो रिसिप्ट साइड से ज़्यादा है, द पेमेंट्स आर मोर देन द रिसिप्ट्स, देन ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी डेफिसिट। द वाइस वर्सा सिचुएशन, यानी कि इसका उल्टा सिचुएशन, जहाँ पे जो हमारी रिसिप्ट साइड है वो अगर ज़्यादा है देन द पेमेंट साइड, तो वो हो जाएगा surplus one. Now let us move on to the second one in this, which says that trade in invisibles or services. Now the incomes from invisibles are recorded on credit side and payments on the debit side, we all know. Now combined balance of both of them, combined balance of this, that is trade in merchandise goods and trade in invisibles or services, is called the current account balance. Yes, इसको the combined balance of both of them is called the current account balance. Now let us move on to the capital account. अब हम capital account को समझेंगे. This account records receipts and payments from transactions on assets such as money assets like bonds, share, gold, capital, loans, etc. जो लंबे टाइम तक होते हैं. तो यस एग्जाम्पल्स आप जानते ही हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि ओवर हियर ऑब्वियसली द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन रिलेटेड टू द रिसिप्ट्स, रिलेटेड टू द पेमेंट्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड टू व्हाट, द एग्जाम्पल्स आर गिवन, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, गोल्ड है, कैपिटल, लोन्स एक्सेट्रा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. द टोटल ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. यस, इनका जो टोटल रहेगा दैट इज द करंट एंड द कैपिटल का, उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच सेज अस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. नाउ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे असर डालते हैं. द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पहले उसका मीनिंग देखेंगे. ऑब्वियस ही बात है, मीन्स दोज फैक्टर्स विच इफेक्ट द इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि मूवमेंट ऑफ से जो लेबर होता है उसका मूवमेंट पे असर पड़ना, क्योंकि हर एक कंट्री की पॉलिसीज़ ना अलग अलग होती हैं. सो इन सारी चीज़ों पे असर पड़ता है. इम्पोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, लैंडिंग है, एक्सेट्रा इन अ नेशन. डेफिसिट और सरप्लस इज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन अराइज ओइंग टू सच फैक्टर्स. यस, डेफिसिट या सरप्लस जो है वो उनका डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है
ये सारे रीजंस की वजह से। द इम्पैक्ट ऑफ सच फैक्टर्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यस, आपका कंट्री जो है वो कितना डेवलप्ड है वो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ वी विल बी सेइंग अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ विच वेरी फर्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन माई नेक्स्ट ई क्लास। द नेक्स्ट वन इज प्राइजेस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्री। जो गुड्स में ट्रेडर ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस उसकी होम कंट्री में, खुद की कंट्री में, और उसी प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे कंट्री में कितना है। आफ्टर दैट वी हैव वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स। यस, वैरायटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहेगा। क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट बिकॉज इफ द प्रोडक्ट इज हैविंग गुड क्वालिटी देन उसके सेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अदर फैक्टर्स कि हम किस कंट्री में बेच रहे हैं। इफ इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री देन ऑब्वियसली द क्वालिटी विल मैटर अ लॉट। नेक्स्ट इज इनएविटेबल इम्पोर्ट्स, यानी कि वो इम्पोर्ट्स जो हर कंट्री के लिए ज़रूरी ही होते हैं, उसके बिना पॉसिबिलिटी प्रोग्रेस की कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इन आवर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे जो कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है उनके लिए वो सारे प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनएविटेबल इम्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यस, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, सो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट्स इजीली पॉसिबल हो पाएंगे। टेक्नोलॉजिकली वो कंट्री एडवांस्ड होगी और वो टेक्नोलॉजी को वो सेल भी कर पाएगी। सो द रिसिप्ट साइट्स विल बी मोर। द नेक्स्ट इज लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। हर कंट्री के ना रूल्स अलग अलग होते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी अलग अलग होते हैं, सो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। आफ्टर दैट इज ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। नाउ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब अगर बहुत अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर इन सारी चीज़ों का पड़ेगा ही। नाउ next on screen you will find a table which will tell you about the hypothetical example of balance of payments। अब यहाँ पे एक imaginary example आप लोगों को बताया गया है balance of payments का। yes, credit items that is the receipts, debit items that is the payments, यहाँ पे पूरा in detail current account और आपको capital account सब बताया गया है। you can refer it in order to understand the topic। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, फिर ट्रेड बैलेंस, सर्विसेज एक्सपोर्टेड, इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न्ड, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, सब टोटल भी दिया हुआ है। एंड ऑन द अदर साइड, yes, that is the payment side, you will find merchandise import, services imported, investment money paid, unilateral payment। so yes, if you see the current account का जो balance है that is going in minus। next is the capital account। now capital account में भी yes, दो sides, the receipt sides and the payment side, long term borrowing, short term borrowing, sale of gold, and then the total is given। दूसरी तरफ that is payment side में long term lending, short term lending, purchase of gold दिया हुआ है। and over here you will find errors and omissions भी दिया हुआ है। then you will find that it is going in plus 200। final total receipts you will find and the balance of payment over here is 0। so students, with this I'm done with my today's e-class। I hope you were able to understand my topic। we'll continue with the same chapter in my next e-class also। exchange rate जो मैंने आपको बोला कि हम next e-class में करेंगे, so in detail we will be understanding about it। so till that time, take care of yourself and yes,
Thank you.